Hello students, I am Dr. Muhammad Hashim from Department of Applied Physics, Aligarh Muslim University, Aligarh. Today I am going to demonstrate an experiment, and the objective of this experiment is to draw a graph between 1 upon f square and c and 1 upon f square and L, and hence to determine the value of a given unknown inductor and a unknown capacitor by using Lissajous figures. So please see here what is our main aim today. Our main aim or our main objective is that what you have to do, you have to plot a graph between, please see here what you have to do here, and you have to plot a graph, please see here please, and you have to plot a graph between 1 upon f square and L. L is the inductance, and you have to plot a graph between 1 upon f square and C. F is the frequency and C is the capacitance. So by using the Lissajous figures, you have to plot a graph between 1 upon f square versus L, and you have to plot 1 upon f square on the y-axis and L on the x-axis, and you have to plot a graph between 1 upon f square on y-axis and x and C, where C is the capacitance, on the x-axis. So by using the Lissajous figures, and also you have in the second part you have to find out the unknown inductance and capacitance. So here this is our objective, and the main apparatus which is required for doing this experiment, the main apparatus we required for doing this experiment is that first apparatus that we required for performing this experiment is a cathode ray oscilloscope. Please see here, this is our cathode ray oscilloscope. So by using this cathode ray oscilloscope, we will draw the Lissajous figures here. We will find out the Lissajous figures, and the first apparatus that we required here is the cathode ray oscilloscope. Please see here, this is our cathode ray oscilloscope. And the second apparatus that we required here for doing this experiment is an audio oscillator with calibrated dial for frequency. Please see here, this is our audio oscillator, audio generator with calibrated. This is our audio oscillator with calibrated dial for a frequency. And the second one is that this is our lab made and Colpit oscillator. This is our Colpit oscillator. And the third apparatus that we required, this is the Colpit oscillator. So we also required here the Colpit oscillator for doing this experiment. Colpit oscillator with pins for connecting external inductor and capacitor. And the next apparatus that we required here is dial type decade inductance. Please see here, this is our dial type decade inductance box. So please see here, this is our dial type decade, this is the dial type decade inductance and capacitance boxes. So this is the dial type capacitance box. So this is dial type capacitance, this is dial type decade inductance box, and this is the dial type decade conductor box. And the next apparatus that we required here is the unknown capacitor. So please see here, this is an unknown capacitor. So in this box we have unknown capacitance, unknown capacitor is there, and unknown inductance, unknown inductor is inside this box. So in separate boxes with terminal and connecting wires. So these are the various connecting wires. Okay students, so what are our main apparatus that we required here? This is our CRO, cathode ray oscilloscope. This is our audio generator, and we have required here a Colpit oscillator. Please see this, this is the lab made oscillator, and this is known as the Colpit oscillator. And the other apparatus that we required here is decade condenser box. So please see here, this is the decade condenser box. And the next one, decade inductor box. So please see, this is the decade inductor box. So this is the battery eliminator. Here we have used a battery eliminator of 2 volt. So these are the main apparatuses that we required for performing or for doing this experiment. Okay, so our main object, our main aim for doing this experiment is that basically what you have to do, you have to plot a graph between 1 upon f square. F is what? Frequency. So basically in this experiment you have to find out the frequency.
So frequency versus L is the inductance, and frequency 1 upon F square versus C is the capacitance. So this is our main object, our main aim, our main motto for doing this experiment. So before starting this experiment, I would like to explain some theory behind this experiment. Actually, this is the Lissajous figure experiment, and the theory behind this experiment you know already in your previous classes, that the resultant of the two linear simple harmonic motions that are placed perpendicular to each other form different types of Lissajous figures depending upon their phases. So what are Lissajous figures? Lissajous figures are nothing but when two simple harmonic motions are acting perpendicular to each other, they will constructively interfere and they will destructively interfere. The points where the interference constructively, you get the maximum, that is the maximum displacement. When they interfere destructively, you get the minimum displacement. Okay, if the displacement is zero, it means that you will find out nodes, and if the displacement is maximums, you will find out the antinodes. So please see here, for an example, please see here in your sheet, it is clearly mentioned in theory that if you have two simple harmonic motions, suppose I am considering the first simple harmonic, the equation of the equation of first simple harmonic motion is x equals to a sine 2 pi ft, and the second simple harmonic motion that I am taking here, that is the y equals to b sine 2 pi ft plus phi. Phi is the phase angle there. So on when they will superimpose, and the resulting of the superimposition, after superimposition of the two simple harmonic motions, we find out the resultant wave like the x square plus a square plus y square plus upon b square minus 2xy upon ab cos phi equals to sine square phi. This is the resultant of the two simple harmonic equations. So when we solve these equations for different phases, if you put phase phi equals to 0 and you apply these conditions, you will find out the straight line. In the similar way, if the phase difference is pi and you are applying the desired conditions given here, you will find also the straight line. And in the third case, it is given that if your phase difference is pi by 2, you will get a ellipse. And in the last case, please see here, in this equation, you will you put the a equals to b and your phi equals to pi by 2, you will find out a circle. So basically, some various Lissajous figures can be obtained by applying these desired conditions. So in the similar way, we have to apply the conditions here, and we have to find out the Lissajous figures. For applying two simple harmonic type forces on a particle in two mutually perpendicular directions, in this experiment a cathode ray oscilloscope is used, and two audio oscillators we have used here. One is the standard audio type oscillator and another one is the Colbert oscillator. In this experiment, a standard audio oscillator having variable frequency knob, please see here, this is the standard audio oscillator, and this has a variable frequency range here. So you can say that you can adjust 100, 1k, 10k, 100k frequency. So basically this has a standard oscillator have variable frequency knob. So by using this knob, you can change the various frequency. This is the variable frequency knob is here that we used in this here standard audio type oscillator. And also we have another oscillator here. This is the Colbert oscillator that I have also discussed previously in the operators, that this other type of oscillator, that is the Colbert oscillator, and this Colbert oscillator is designed in the lab. If it tank circuit, please here, if its tank circuit contains total inductance L and total capacitance C, then its resonance frequency is given by, please see here, this is the formula of resonance frequency. Please see here, if this Colbert oscillator have inductance L and total capacitance C, then its resonance frequency is given as F equals to, we know that F equals to 1 upon 2 pi under root LC. So basically this is the frequency of the tank circuit. We have already discussed in our 12th class, and if we do square 1 upon, and on reciprocal of this one, we get out 1 upon F square equals to 4 pi square LC. Please see here, this is our main equations that we required here for doing this experiment. So please see here, if this L is, which is inductance, and C is capacitance, is varied with the frequency of the output AC voltage will also vary. So please see here, this equation number A is of the type of the straight line equation, is the similar to the straight line equation, and
and this resembles with the equations as we get already that y equals to mxc and y equals to mxc plus y equals to mx plus c represent a straight line equation where c is the intercept. Here is not intercept, it is here. It is the similar equation as equals to y equals to mxc, and this equation represents a straight line and is the straight line which passes through the origin. So please see here students, so what we have to do, just if we plot a graph on 1 upon f square on the y-axis and L over C on the x-axis, we must get a straight line passing through origin. So please here in our experiment, you have to, what you have to do, you have to plot a graph between 1 upon f square versus L, and you have to plot a graph between 1 upon f square versus C in your experiment, and from these equations it is clear that this graph must be a straight line, and which straight line? The straight line which passes through the origin. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जर्वेशंस. तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशंस टेबल दिया है. इसमें आप ये देखिए सी की वैल्यू दिया है, और यहाँ पर इस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ है ये चेंज होती रहती है. सी दिया हुआ है, बेसिकली सी इंटरनल है, ये दिया हुआ है 0.33 माइक्रोफेरेड जो सर्किट का है, आपका सर्किट का कैपेसिटेंस है बेसिकली. और यहाँ पर ये देखिए आपका ये सी है, ये इसमें सी लगा हुआ है, ये अननोन कैपेसिटेंस है. अननोन कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस वैल्यू दिया है ये है यहाँ पर 0.33 माइक्रोफेरेड. क्योंकि यहाँ पर आपको देखो इस टेबल में क्या दिया हुआ है, इस टेबल में क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर, एल एक्सटर्नल जो हम यहाँ से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स, और यहाँ पर टोटल एल निकालने के लिए आपको सम करना होगा एल एक्सटर्नल प्लस एल सी. तो याद रखना कि यहाँ पर जो आपको ये एल सी जो प्लस करना है, तो ये एल सी की वैल्यू दिया हुआ है 49 mH जो आपका सर्किट का इंडक्टेंस है बेसिकली. तो ये एल इंटरनल है जिसको एल सी या बोला है, या आपका सर्किट का इंडक्टेंस है. यहाँ पर इसकी वैल्यू दिया है 49 mH, ये वेरी होती रहती है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, नेक्स्ट कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो फ्रीक्वेंसी आप नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो ऑसिलेटर. तो देखिए आपको ऑडियो ऑसिलेटर में क्या अरेंजमेंट करना है. सबसे पहले देखिए आपका ये पावर ऑफ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने इस ऑडियो ऑसिलेटर की पावर को ऑन कर दिया है, ठीक है. तो यहाँ पे आप इस ऑडियो ऑसिलेटर की पावर को ऑन कर देंगे, और यहाँ पर ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेंज है. यहाँ पे देखिए आप ये वेरी कर रहा है, ये आपने अब 100 पे सेट किया मैंने आपको, ये 100 पे, फिर आपने 1K पे. तो यहाँ पे आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को 1K पे सेट करना है, पावर को ऑन रखना है. और ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइंस, डिफरेंट वेव्स का सिग्नल दिया हुआ है, डिफरेंट जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ये भाई साइन वेव है, ये स्क्वायर वेव है, तो आपको इसको साइन वेव पे रखना है. और यहाँ से आपको जो वेरिएबल जो दिया हुआ है यहाँ से वेरी कराना है इसको. ये देखिए यहाँ से वेरी कराना है, और वेरी इस तरीके से कराना है कि जो आपका जो इसमें ऑसिलोस्कोप है इसमें सर्किल बन जाए. तो आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में बेसिकली यही काम करना है कि जो आपका जो ऑडियो ऑसिलेटर का जो वेरिएबल नॉब है, इस वेरिएबल नॉब की मदद से आपके जो CRO है उस पर सर्किल बनाना है. ये देखिए इसमें बना दो. तो स्टूडेंट्स आपको हर इसमें क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पर हमने एल अननोन लगाया हमने. देखिए आपने ये इसको जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली हम टेबल जो बना रहे हैं यहाँ पर, ये टेबल देखिए आप. तो यहाँ पर टेबल बनाना है, इधर टेबल पे लाइए भाई. ये देखिए आपको जो ऑब्जर्वेशन लेना है, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले सी दिया हुआ है. सी क्या दिया है, ये बेसिकली जो सर्किट है आपका कैपेसिटेंस सर्किट है उसका इंडक्टेंस दिया हुआ है. तो ये 0.3 माइक्रोफेरेड है, और ये LC जो दिया हुआ है 49 मिली हेनरी जो है ये सर्किट का इंडक्टेंस दिया हुआ है. तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अननोन निकालेंगे. देख बेसिकली ये आपका ये हम यहाँ पर ये देखिए जो हमारा L अननोन है, ये देखिए आप अननोन इंडक्टेंस, इसको यहाँ से जो कॉलपिट ऑसिलेटर है ये इंडक्टेंस वाली नॉब में इसको कनेक्ट कर देंगे. ये हमने कनेक्शंस कर दिए हैं. आउटपुट जो बेसिकली हम ले रहे हैं CRO के अक्रॉस ले रहे हैं, ये आपका ऑडियो ऑसिलेटर है. और यहाँ पर इसमें देखिए ये इसका इनपुट हमने इस पर लगा दिया है.
जो इन अननोन हमारा जो देखिए अननोन इंडक्टेंस है, ये देखिए आपका हमारा। और सबसे पहले जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट को शुरू कर रहे हैं, हमने अपने अननोन इंडक्टेंस को हमने जो कॉलपिट ऑसिलेटर है उसके इनपुट पे लगा दिया है। ये देखिए हमने कॉलपिट लगा दिया है। जो हमने जो ये आपका जो आपका CRO का जो है इसका जो है कॉलपिट ऑसिलेटर के आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो कॉलपिट ऑसिलेटर है इस यहाँ पे जो BAT बैटरी लिखा है, यहाँ पे हमने बैटरी जो हमारा बैटरी हमने यहाँ पे 2 एलिमिनेटर की जो बैटरी यूज़ की है 2 वोल्ट का, वो यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर दिया है। ये बेसिकली आपके जो कॉलपिट ऑसिलेटर हैं ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स है, और एक पॉइंट पे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, दूसरे पॉइंट्स पे हमने जो है आपने अननोन इंडक्टेंस को लगा दिया है, और जो आउटपुट है जो CRO का वह हमने यहाँ पर इसके कॉलपिट ऑसिलेटर के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये इसके मेन हमारे जो है कनेक्शंस हैं। हमारा जो क्या कहते हैं कॉलपिट ऑडियो ऑसिलेटर है उसको एक CRO के एक जो चैनल पे टर्मिनल पे लगा दिया है, जो दूसरे टर्मिनल को हमने इसे कॉलपिट ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑसिलेटर। तो प्लीज सी हियर व्हाट वी डू नाउ। तो आफ्टर डूइंग द ऑल कनेक्शंस फॉर अननोन इंडक्टेंस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हैं। तो यू हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑसिलेटर बाय यूजिंग द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नॉब ऑफ द ऑडियो ऑसिलेटर स्लोली till a circle is obtained. Please see here what you have to do, you have to adjust the frequency of this audio oscillator by using the variable frequency knob slowly till a circle is obtained. Please see here you have to do till the circle is obtained in the oscilloscope screen. तो यहाँ पर देखिए जब हमारा सर्किल आ गया, ये देखिए ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पे जो सर्किल आ गया, तो आपको करना क्या है कि जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे जब आपने अननोन इंडक्टेंस को लगाया तो इस फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेना है। तो ये कहलाएगी आपको अननोन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेरी अननोन फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी आपकी L अननोन। तो देखिए आपकी L अननोन यहाँ पर आ रहा है तकरीबन 0.607 किलोहर्ट्ज़। तो सबसे पहले आपको ये अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने, अननोन फ्रीक्वेंसी को निकाला और हमने इस अननोन फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लिया। तो स्टूडेंट्स पहली स्टेप मेरे साथ आपकी समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, L अननोन लगाना है, आपको L अननोन लगाना है कॉलपिट ऑसिलेटर में। और तो आपका जो ऑडियो ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी को वो आपको एडजस्ट करना है बाय दिस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नॉब। तब तक आपको एडजस्ट करना है जब तक ये आपका सर्किल ना बन जाए। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर L अननोन के लिए रीडिंग लिया है, L अननोन को जो है इनपुट पे सेट किया है कॉलपिट ऑसिलेटर के, और इसकी हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो L अननोन की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है आपकी 0.607 किलोहर्ट्ज़। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने L अननोन को इनपुट पे लगाया था उसको हटा देना है, ये हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब आपका जो L अननोन की जो फ्रीक्वेंसी आई है, प्लीज़ सी हियर वेरी क्लियरफुली, प्लीज़ लिसन वेरी क्लियरफुली, कि जो आपकी अननोन की जो फ्रीक्वेंसी आई है तो आपको जो रीडिंग्स लेना है, ये ऑब्जर्वेशंस जो लेना है आपको, तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस की रीडिंग्स लेनी है तो यू हैव टू टेक द वैल्यूज ऑफ L एक्सटर्नल सच दैट you get 5 readings of frequencies above the frequency of L unknown and 5 readings below it, ठीक है। तो आपको जो अब L अननोन आपका आया है, जो हमारी यहाँ पर L अननोन की वैल्यू आई है आपकी 0.607 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पर जो आपका L एक्सटर्नल दिया हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स दिया हुआ है। प्लीज़ सी हियर दिस इज़ आवर डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स। तो यहाँ से हम L एक्सटर्नल की वैल्यू निकालेंगे। तो आप याद रखिएगा कि जो आपकी L एक्सटर्नल की वैल्यू आएंगी तो वो L एक्सटर्नल की वैल्यू आपको इस तरीके से लेना है कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी जो L अननोन की फ्रीक्वेंसी है उससे आपकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 5 ऊपर की वैल्यू हमें मिल जाए और उससे 5 नीचे की वैल्यू हमें मिल जाए। तो हमें इस तरीके से इसको ऑब्जर्वेशन को वैल्यू को सेट करने हैं। तो हमें ऑब्जर्वेशन इस तरीके से लेना है कि हमारी
जो रीडिंग्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, वो हमारी एल अननोन से 5 ऊपर आ जाएं और 5 वैल्यू जो है उस फ्रीक्वेंसी से, जो अननोन फ्रीक्वेंसी हमारी जो है, जो यहाँ पर हमने 0.607 किलोहर्ट्ज़ निकाली है, उससे 5 वैल्यू नीचे मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसके नोब के बारे में बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट नोब्स वैल्यू गिवन हियर। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये जो मल्टीप्लायर है, ये देखिए आपका 0 पे रखा है मैंने इसको। यहाँ पे 1 मल्टीप्लायर है, ये 2 पे रखा है। इसका मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि अगर आप इस नोब को 1 पे सेट करोगे तो इट विल रीड एज 0.01 हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक चेंजेस ये करना है, क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सीरियल नंबर नोट करेंगे, यहाँ पर आप एल एक्सटर्नल की वैल्यू नोट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप एल एक्सटर्नल की वैल्यू नोट रखेंगे तो एल एक्सटर्नल आप यहाँ से जो आपका डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स आया है, वहाँ से आपके एल एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको जो है चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके इसके ऑब्जर्वेशन टेबल में वैल्यू दिया हुआ है वो मिली हेनरी में दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जो डिकेड बॉक्स में जो वैल्यू है, वो जो इसका नोब है, 1 नोब इज इक्वल टू 0.01 हेनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, you have to convert this Henry into millihenry. And dear students, you very well known that how to convert a Henry into millihenry. So if you want to convert a Henry into millihenry, you have to multiply it by 1000. So please here, if you want to convert this knob, which is the 0.01 Henry times 1 knob is equals to 0.01 Henry, and if you want to convert this into millihenry, you have to multiply it by 1000. You know that 1 Henry equals to 1000 millihenry. So if you want to convert this knob into millihenry, so this will equals to 10 millihenry. So please see here, one knob will read as 10 millihenry. Please read or please listen this very carefully, and please this very clearly, because in our observation table it is given in millihenry and in this knob is of Henry. तो पहले आपको क्या करना है, आपको इस हेनरी को मिली हेनरी में कन्वर्ट करना है। तो 1 हेनरी बेसिकली 1000 मिली हेनरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 1 नोब की वैल्यू होगी वो 10 मिली हेनरी के बराबर होगी। तो ये देखिए डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स में आपका जो 1 नोब होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 मिली हेनरी। यहाँ पर देखिए आप, ये दिया हुआ है जो मल्टीप्लायर दिया हुआ है 0.1 हेनरी के बराबर है। इस मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाया है कि अगर इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट हेनरी इनटू मिली हेनरी, इन द सिमिलर वे यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाइड 0.1 बाई 1000 यू विल गेट 100 मिली हेनरी। तो यहाँ पर इसका बताने का लब्बल-लुबाब जो है वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको इसमें क्या कहते हैं, एक फर्स्ट नोब पे चलाएंगे तो ये 100 मिली हेनरी पड़ेगा, तो इसको 1 पे रखेंगे ये 10 मिली हेनरी होगा। तो आपको जब आपने अननोन को एडजस्ट करके अपने फ्रीक्वेंसी को नोट निकाल लिया, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशंस को इस तरीके से लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ऑब्जर्वेशन इस तरीके से लेना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, बाय यूजिंग दिस, हम देखिए आपने अननोन से निकाल के आपका जो इनपुट है, इनपुट ऑफ द कॉलपिट ऑसिलेटर इज नाउ कनेक्टेड विद द डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स। यहाँ पे देखिए हमने आपको डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स में आपको इनपुट दे दिया है, एंड योर आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द CRO। यहाँ पर देखिए आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब सिर्फ आपको स्टूडेंट्स क्या करना है ऑब्जर्वेशंस में, ऑब्जर्वेशंस देखिए स्टूडेंट्स हम पहले से लेके रखे हैं। यहाँ पर आप ये देखिए आपको बेसिकली आपको एल एक्सटर्नल जो आपका मिली हेनरी है, इस नॉब की मदद से, डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स की मदद से आपको यहाँ पर इसको नॉब को सेट करना है। ये आप 20 रीडिंग भी ले सकते हैं, 25 रीडिंग भी ले सकते हैं, 30 रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट्स हम वो वैल्यू चाहिए हमें, जैसे मैं आपको पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, वी रिक्वायर्ड दैट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट लाइज 5 वैल्यूज अप टू द अननोन फ्रीक्वेंसी एंड दैट लाई डाउन टू द अननोन फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पर आपने 20 वैल्यू ले लिया इस इंडक्टेंस बॉक्स की मदद से, आप 30 वैल्यू ले लीजिए, आप यहाँ पर इसे फर्स्ट पे सेट करेंगे, ये आपका 10 मिली हेनरी पे सेट हो जाएगा। तो मैं 10 मिली हेनरी पे सेट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑडियो ऑसिलेटर की मदद से जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी मदद से उसको वेरी कराना है, और CRO पे आपको सर्किल बनाना है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको you have to do nothing but you have to change the variable frequency, you have to change the frequency of the audio oscillator. After changing the frequency of audio oscillator, you have to find the circle on the CRO and you have to change the value of the decayed inductance box. तो आपको ये वैल्यू चेंज करना है, आपको 10, 20, 30, 40, यहाँ स्टूडेंट्स देखिए आप इसको जब फर्स्ट नोब पे सेट करेंगे 10 रीड करेगा,
2 पे करेंगे 20 रीड करेगा, 3 पर एडजस्ट करेंगे 30 रीड करेगा। इसी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये 100 पे आ जाएगा तो ये कंप्लीट आपका 100 हो जाएगा। तो फिर जब ये 100 पे आ जाएगा तो आप इसको, अगर आपको 110 सेट करना है तो इस नॉब को, जो मैंने बोला आपको, ये 1 नॉब जो है 100 मिली हेनरी के बराबर है। जब इसको आप 1 पे सेट करेंगे तो इट विल बी 100, तो ये 10 पे सेट करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो मेन पर्पज़ है, हमें जो मेन मोटो पर्पज़ है, हमारा जो मेन मकसद है, वो आपको जो फ्रीक्वेंसी आपके अननोन फ्रीक्वेंसी है उससे वैल्यू को आपको 5 नीचे वैल्यू आपको लेके आना है, 5 वैल्यू आपको नीचे लेके आना है। तो फिर ये डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स का जो मेन मकसद है वो आपका डियर स्टूडेंट्स ये है यहाँ पर। तो आपकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी जो हमने आपको सबसे पहले निकाला था 0.607, तो हमें इसकी मदद से एडजस्ट करना है, इन वैल्यू को वेरी कराना है। वैल्यू को वेरी करा के हमें यहाँ पर सर्किल बनाना है। सर्किल कब बनाएगा आपका, तो जो आपका ऑडियो ऑसिलेटर है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो ऑसिलेटर है, इसको वेरी करा के आपको इसमें सर्किल बनाना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने सपोज कीजिए 100 सेट किया है, तो 100 सेट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, इसको मैं 0 पे रखूँगा। ये आपका नॉब जो है, फर्स्ट वाला नॉब जो 10 वाला नॉब है, इसको 0 पे सेट कर दिया है, 100 वाले नॉब को फर्स्ट पे सेट कर दिया है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जब हमने इसको 100 एल एक्सटर्नल की वैल्यू 100 मिली हेनरी एडजस्ट किया, तो यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इसको फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नॉब की मदद से हमें यहाँ पर इसको वेरी कराना है, ठीक है। और ये हमें तब तक वेरी कराना है जब तक आपका ये आपका सर्किल ना बन जाए। ये देखिए आपको सर्किल बनाना है बेसिकली। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड change the value of frequency by using the audio oscillator up to you get the circle on the CRO. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें यहाँ पर हमने 100 मिली हेनरी सेट किया है विद द हेल्प ऑफ द डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर हमने ऑडियो ऑसिलेटर की मदद से फ्रीक्वेंसी को वेरी कराया है, और ये फ्रीक्वेंसी को तब तक वेरी कराना है जब तक आपका सर्किल ना बन जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में यही करना है, सिंपली आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल देना है, और ये तब तक आपको देना है जब तक ये आपका ये सर्किल ना बन जाए। ये देखिए आप, ये देखिए, ये सर्किल लेके आना है आपको यहाँ पे बार बार इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना है, और फ्रीक्वेंसी को तब तक वेरी कराना है जब तक कि आपका एग्जैक्ट सर्किल ना आ जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको ये सर्किल ही लेके आना है। नॉब को आपको वेरी कराना है, फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना है, ठीक है। तो बेसिकली जब तक आपको ये सर्किल ना मिल जाए तब तक आप इसको फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते रहेंगे, और यहाँ से हम आपको इसको जो है वैल्यू नोट करते रहेंगे। तो आप पहले 10 पे वैल्यू चेक कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120, आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। यू कैन टेक 20 वैल्यूज़, यू कैन टेक 110 वैल्यूज़, आप इसी तरीके से वैल्यू लेते जाइए। बट लेकिन आपको वैल्यू को इस तरीके से चूज़ करना है कि जो आपका अननोन है, तो जो आपकी वैल्यू है वो इस अननोन से 5 ऊपर मिल जाए आपको, और जो आपकी वैल्यूज़ हैं उस अननोन से 5 नीचे मिल जाए। तो इस तरीके से आपको इसको वेरी कराना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्किल बनना है आपको, सर्किल बनाना है। ये देखिए आप, ये एग्जैक्ट वे में, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विद आरिफ साहब, प्लीज़ सी द वैल्यूज़ हियर। ये एल एक्सटर्नल की वैल्यू हमने है यहाँ पर 100 को सेट किया, तो 100 को सेट करने के बाद हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है 0.70। ये चेंज होता रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल एल निकालना है। तो टोटल एल निकालने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो टोटल एल विल बी द सम ऑफ एल एक्सटर्नल प्लस एल सी। एल सी मैंने आपको पहले बता दिया था, जो सर्किट कंडक्टेंस उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है 49 मिली हेनरी जो सर्किट कंडक्टेंस है। तो टोटल एल निकालने के लिए आप इसको सम कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल एक्सटर्नल को 100 पे सेट किया है और एल इंटरनल की वैल्यू जो हमारा था वो 49 था। तो टोटल हमारा हो गया स्टूडेंट्स 100 प्लस 49 149। इसी तरीके से मैंने ये अलग अलग वैल्यू लिया है, कंटिन्यूसली आप वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर वैल्यू को चूज किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो अननोन था तो बेसिकली 0.607 जो किलो हर्ट्ज था, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे 5 ऊपर आ जाए। तो देखना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है हमारा 607 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 609, 629, 656, ठीक है, और 681, 706 किलो हर्ट्ज जो है बेसिकली हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारी इस अननोन से ऊपर की आ रही है तकरीबन। तो हमारी जो अननोन से ऊपर की वैल्यू है उसको हमने नोट डाउन कर लिया है, अपनी बुक में लिख लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम 5 वैल्यू नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के एल एक्सटर्नल की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, तो जिससे हमारी जो वैल्यू है अननोन से नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आप 0.585, 575, 559, 540, 530 ये सभी वैल्यू जो है हमारी एल अननोन से नीचे की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो आपका डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स है इसकी मदद से आपको एल वैल्यू को सेट करना है, ठीक है। वैल्यू को सेट करके आपको इसमें यहाँ पर एल एक्सटर्नल की वैल्यू लिखना है और टोटल निकालने के लिए इसका सम कर देंगे। इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखना, ऑडियो ऑसिलेटर में हम वेरिएबल नॉब जो दिया हुआ है उसको वेरी करा के फ्रीक्वेंसी को नोट करते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी को नोट करने के फ्रीक्वेंसी कब नोट करेंगे हम, जब आपका ये सिंक्रोनाइज हो के यहाँ पर आपका ये सर्किल बन जाए। तो ये मेन पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंसी को तब तक वेरी कराते हैं जब तक ये आपका सर्किल ना बन जाए। ये देखिए आप स्टूडेंट, ये आपका सर्किल बना, सर्किल भी तब आपको लेना है जब ये धीरे धीरे सर्किल आपका चलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/f कर देंगे, जो आपका फ्रीक्वेंसी आया है उसका 1/f निकाल लेंगे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इफ यू नो f you can easily find out 1/f, and if you know 1/f you can easily find out the 1/f is for why I am doing so, because I have to plot a graph, please see here। तो आपको फाइनली क्या करना है, जो आपकी टोटल एल की वैल्यू आई है यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखिए, जो टोटल एल की वैल्यू है वो उस वैल्यू को आपको प्लॉट करना है ऑन द एक्स एक्सिस, और जो 1/f स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको प्लॉट करना है आपको ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आप देखिए, आपको जो आपने यहाँ पर इनपुट ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर के इनपुट पे जो आपने डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स को लगाया था स्टूडेंट्स, अब आप वहाँ से उसको हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, अपना सेकंड वाला जो है जो आपका बॉक्स है, दिस बॉक्स इज नोन एज डिकेड कंडेंसर बॉक्स। इस कंडेंसर बॉक्स को आपको जो है कॉलपिट ऑसिलेटर के इनपुट पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर भी नॉब का मसला आएगा, मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉब के लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो नॉब दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लायर देखिए वो दिया हुआ है माइक्रोफेरेड में, यहाँ पर भी जो नॉब दिया है वो माइक्रोफेरेड में दिया है। और हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उस ऑब्जर्वेशन टेबल में भी आपको जो रीडिंग्स नोट करना है वो माइक्रोफेरेड में नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ एक काम आपको एक्स्ट्रा ये करना है कि यहाँ पे हम जब इसको इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने जो क्या कहते हैं इंडक्टेंस है, यहाँ पे देखिए आप इंडक्टेंस को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम सेकंड पार्ट में करेंगे तो सेकंड पार्ट में ये देखिए जो आपका कॉलपिट ऑसिलेटर है, तो कॉलपिट ऑसिलेटर में यहाँ पे दिया हुआ ना आई एन डी मीन्स इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो इंडक्टेंस वाला जो है आपको इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इंडक्टेंस को जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया है, यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस के लिए करेंगे, ठीक है। तो हम कैपेसिटेंस के लिए जब रीडिंग निकालेंगे तो सेम प्रोसीजर हम वही करेंगे कि हम यहाँ पर अननोन की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने वहाँ पे कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के लिए किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले ये देखिए आपका अननोन कैपेसिटेंस है, ये अननोन कैपेसिटेंस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अननोन कैपेसिटेंस को हम लगा देंगे, ठीक है। अननोन कैपेसिटेंस को बेसिकली ये देखिए कैपेसिटेंस के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हमने कनेक्ट कर दिया है,
ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अननोन कैपेसिटेंस की सी अननोन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सी अननोन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सी अननोन की वैल्यू आपका जो ऑडियो, आपका जो क्या कहते हैं ऑडियो जनरेटर है, ऑडियो ऑसिलेटर है, यहाँ पे इसको वेरी कराएंगे और इस तरीके से वेरी कराएंगे कि यहाँ पर आपका सर्किल बन जाए। तो in the same way, what you have to do, you have to apply the same procedure. What same procedure? So you have to apply the same procedure such that हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फिर आपको जब अननोन कैपेसिटेंस लगाएंगे तो उस वेरिएबल आपका जो वेरिएबल ऑडियो जनरेटर है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे और तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक ये आपका सर्किल ना बन जाए सीआरओ पे। तो देखिए आप ये आपको सर्किल बनाना है, ठीक है। तो ये आपको सर्किल बन जाएगा तो तब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आ रही है, जब ये सर्किल बना है तब हमने देखिए इसको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आई है, ये आई है आपकी सी अननोन की वैल्यू है 0.826 किलोहर्ट्ज़। ये देखिए आपका सी अननोन की वैल्यू है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस सी अननोन को हटा देना है। ये देखिए जो आपने सी अननोन यहाँ पर दिया हुआ था कॉलपिट ऑसिलेटर के इनपुट पर, ये इसको यहाँ से हटा देना है। और आप इसमें स्टूडेंट्स ये याद रखना कि जो आपका इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस वाले टर्मिनल को आपने शॉर्ट करना है जब आप इसको सी कैपेसिटेंस के लिए करेंगे। जब आप इस ऑब्जर्वेशन को करेंगे देखना सेकंड टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, सी एक्सटर्नल दिया हुआ है। टोटल सी निकालने के लिए सी एक्सटर्नल प्लस सी की वैल्यू जो ऊपर मैंने आपको जिक्र किया था 0.33 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे टोटल सी आ जाएगा आपका। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी जो ऑडियो जनरेटर है उसकी मदद से आप नोट करेंगे, उसका 1/f निकाल लेंगे, फिर 1/f² निकालेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखना आपकी शीट में भी दिया हुआ है। तो आपका जो सी अननोन है उसको नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट्स में, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में आपको क्या करना है, टेक वैल्यूज ऑफ सी एक्सटर्नल सच दैट यू गेट 5 रीडिंग्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अबव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सी अननोन एंड 5 रीडिंग्स बिलो इट। जो हमने सेम प्रोसीजर वहाँ पे एल के लिए किया था, वहाँ पे हमने एल अननोन निकाला था, फिर हमने एल इंडक्टेंस में लगा के आपका जो डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स है उसकी मदद से एल की 5 ऊपर वैल्यू 5 नीचे वैल्यू फ्रीक्वेंसी का नोट डाउन किया था। इसी तरीके से आपको सेम करना है। वहाँ पे आपका जो नॉब दिया था उसको हमने चेंज किया था मिली हेनरी में, क्योंकि यहाँ पर देखना आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल में है यहाँ पर जो रीडिंग्स है स्टूडेंट्स वो माइक्रोफेरेड में दिया है। तो यहाँ पे माइक्रोफेरेड बॉक्स में यहाँ पर आपका जो अब इसको आप 1 पे सेट करेंगे तो ये बढ़ेगा 0.01 माइक्रोफेरेड। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत चेंज करने की इसको नहीं है, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की। वहाँ पर हमने जैसे ही उसको हेनरी को मिली हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई किसी वैल्यू से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस वैल्यू ले लेंगे। स्टूडेंट्स देखिए जैसे हमारा यहाँ पर हमें आपको एक जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे हमने सी अननोन की वैल्यू निकाला वो हमारा 0.826 किलोहर्ट्ज़ आया है। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको नॉब को सेट किया, बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस तरीके से लेना है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस अननोन वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है उससे 5 ऊपर 5 नीचे आ जाए। तो आप इसको वेरी करा के डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि मेरी जो अननोन की वैल्यू है 0.826 किलोहर्ट्ज़ है, तो मैंने आपका जो आपका जो डिकेड कंडेंसर बॉक्स है उसके नॉब को मैंने पहले 3 पे सेट किया। तो देखना स्टूडेंट्स जब मैं इसको 1 पे सेट करूँगा तो इट विल लीड 0.02, ठीक है। तो जब हम इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे इसको ये इट विल लीड एज 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 पे सेट करेंगे इट विल लीड एज 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसी तरीके से हमने इसको नॉब को सेट करके यहाँ पर देखिए मैंने आपको इसको वैल्यू निकाला है। तो यहाँ पे 0.06 सी एक्सटर्नल जो माइक्रोफेरेड में इसको सेट कर दिया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी आई जो है वो है 0.865 यानी 0.865 किलोहर्ट्ज़, और हमारे अननोन की वैल्यू है 0.826 किलोहर्ट्ज़। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर की वैल्यू मिल गई। तो हमें इस तरीके से सेट करना है कि हमें 5 वैल्यू ऊपर की मिल जाए, 5 वैल्यू नीचे की मिल जाए। जो हमारा अननोन है उससे 5 वैल्यू हमें ऊपर मिल जाए और 5 वैल्यू नीचे मिल जाए। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आया है, ठीक है, तो साइकिल पर सेकंड जिसे हम कहते हैं उसको हम उसके बाद 1/f निकालेंगे, फिर 1/f² करेंगे। और फाइनली हम स्टूडेंट्स ये देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे हमें 1/f² लेना है और हमें क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे सी की वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हमें यह है इस एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ यही करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप यू विल बी वेल अंडरस्टैंड दिस experiment very well. If you have any problem you can discuss with me, you can call directly, okay. And during the experiment day we will demonstrate this experiment also. तो स्टूडेंट्स हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये हमारा जो बेसिकली लिसाजू स्पीकर्स एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंडक्टेंस 1/f² वर्सेस इंडक्टेंस और 1/f² वर्सेस कैपेसिटेंस से ग्राफ प्लॉट करना है। और हमने थ्योरी से देखा कि दिस ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर दिया है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको बेसिकली दो ऑसिलेटर हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पर एक कॉलपिट ऑसिलेटर यूज़ किया है, एक स्टैंडर्ड ऑसिलेटर यूज़ किया है हमने यहाँ पर। तो हमने दो ऑसिलेटर की मदद से हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हमने क्या कहते हैं डिकेड कंडक्शन बॉक्स लिया है यहाँ पे हमने एक डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स लिया है, कॉलपिट ऑसिलेटर लिया है, हमने CRO यूज लिया है, आउटपुट हमने CRO की मदद से लिया है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले हम L अननोन का यूज़ करते हैं, फिर दूसरा हम C के अननोन का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी जो हमारे जो बेसिकली हमारा जो मेन है बेसिकली अननोन वैल्यू है, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो ऑसिलेटर। 5 वैल्यू हमें अननोन फ्रीक्वेंसी ऊपर लेना है, 5 नीचे लेना है, और हमें वैल्यू इस तरीके से लेना है, वेरिएबल ऑसिलेटर को हमें चेंज कराना है। इस तरीके से हमें वेरिएबल ऑसिलेटर को विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नॉब फ्रीक्वेंसी को चेंज कराना है कि हमारा CRO में जो है आपका सर्किल बन जाए। तो बेसिकली आई होप यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू वेरी मच।